Okay, in MS Word today we will learn about, firstly we will learn about the views of MS Word. MS Word का document है, उसको देखने की 5 views होते हैं. There are 5 views to see the document. Whatever view we are watching this time, जो भी start करने पर जो सबसे पहले जो generally view आता है, जो हमेशा हम देखते हैं, that is called print layout view. The view which is now visible to you, this view is called print layout. इसमें क्या होता है, what you see is what you get. जैसा ये पेपर दिख रहा है डॉक्यूमेंट, अगर आप प्रिंट आउट लोगे तो सेम ऐसा के ऐसा ही आएगा. देयर विल बी नो चेंज. So the general view which we can see, it is called print layout view. The default view is called print layout. अब we will click on the view tab, which is the last tab. In the view tab, there is a ribbon at the extreme left of the view tab ribbon. You can see the 5 views: print layout, full screen, web layout, outline view, and draft view. So the view which is by default is visible to you, which is called print layout. सेकंड, फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो पूरा स्क्रीन में रिबन्स वगैरह सब, टैब्स एंड रिबन विल नॉट बी डिस्प्लेड. आपको सिर्फ आपका पेज डॉक्यूमेंट दिखाई देगा, वो भी 2 कॉलम के अंदर. तो दिस व्यू इज फॉर द रीडिंग पर्पस. आपको डॉक्यूमेंट ओपन, जैसे आपको एमएस वर्ड का जो मैंने नोट्स दिए, यू जस्ट वांट टू रीड द नोट, यू डोंट वांट टू टेक प्रिंट आउट, you want to read from your computer only. So you will click on the full screen view. तो फुल स्क्रीन व्यू में पूरा की पूरे 2 कॉलम में डॉक्यूमेंट दिखाई देगा. आप बैठ के इसको रीड कर सकते हैं. तो दिस सेकेंड व्यू, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, इज यूज फॉर द रीडिंग पर्पस. थर्ड, वेब लेआउट. if you want to know that अगर ये एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट वेब ब्राउजर को ओपन करना हो तो कैसा दिखेगा, you can click on web layout view. So if this document will be open in the web browser like Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Apple Safari, कोई भी ब्राउजर में ओपन करेंगे तो the view of the web, this page, MS Word document will be like that. कोई भी वेब ब्राउजर में ओपन करोगे तो ये ऐसा दिखेगा. ओके, देन आउटलाइन व्यू में जो है, अगर आपको मेन मेन हेडिंग पढ़नी है अपने डॉक्यूमेंट की, तो उसको फटाफट आउटलाइन पढ़ने के लिए, जैसे एग्जाम शुरू होने वाला और फटाफट आपको आउटलाइन देखनी है, तो यू कैन क्लिक ऑन द आउटलाइन व्यू. So it will the main point will be visible through this bullet sign, and you can read it, the main points of the page. And the last one is ड्राफ्ट व्यू. अगर आपको पेज में कुछ टेक्स्ट, आपको पता है कि कुछ गलत लिख दिया, उसको फटाफट एडिट करना है, यू वांट टू मेक चेंजेस इन द पेज document of the MS Word, so you can click on the draft view and you can quickly go there. Is, if there are images in the page, the images will not be displayed, only text will be displayed in the draft view, and you can make quickly any changes in the page. So this draft view is used to make quick changes in the page. So there are 5 views: print layout, full screen, web layout, outline, and draft view. Now we will open a new page, file tab, new option, click on blank document, and then click on create. This is a new page. So views we have discussed. Now if you want to insert a table in the MS Word, आपने टेबल पहले भी इंसर्ट की होगी,
there is an insert tab. After the home tab, there is a insert tab, and there is a insert tab. There is a ribbon. If you click on the insert tab, the ribbon will be displayed. In that ribbon, you click on the tables group. There is a table icon. If you click on the table icon, there will be some boxes you can see. ये बॉक्स किसके लिए है? जैसे एक सिर्फ एक ही बॉक्स पे मैंने क्लिक किया तो एक ही रो है और एक ही कॉलम है। दो बॉक्स पे क्लिक किया तो द टू कॉलम्स विल बी देयर। तो जितने कॉलम चाहिए, मतलब वर्टिकली जितनी डेटा चाहिए उतने कॉलम सेलेक्ट करेंगे। 3 कॉलम चाहिए, दिस विल बी डिवाइडेड इनटू 3। रो एक और चाहिए, ये 2 रोज, 3 रोज, 4 columns. So whatever rows and column you required, you can click on the column. So that column will be displayed. For example, if I want to write here, make a table of your roll number, name, class, section. एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए टैब की प्रेस करते हैं। 1, then press tab key, फिर नाम लिखिए। ये टेबल मैंने बनाई है। So whenever you create a table, there are two tabs will automatically come. When you insert a table, the two tabs will automatically come. For the first is design tab and second is layout tab. You can see at the end, after the view tab, there are two new tabs are coming. In the design tab, there are so many design of the tables are there. So any design, you click on the design, it will be applicable on your table. Whenever you insert a table, a new tab which is called design tab is having so many kind of design. Whatever design you will click, that design will be applicable to your table. टेबल इंसर्ट करने का ये 3 ways है। अभी तो हमने बॉक्सेस सेलेक्ट करके टेबल इंसर्ट की है। अगर आपको दूसरा तरीका लेना है, इंसर्ट टैब, टेबल ऑप्शन, if you don't want to select the boxes, you can go in the insert tab, table option is there. Click the options, then insert table dialog box will be appear. In that dialog box, it will ask you how many rows and column you want. So you can write here the number of, let's say, I want 3 rows, 2 columns and 4 rows. Okay. इसी टेबल में इसमें कर दिया। I want a new table. Then it will be inserted. Column किसे कहते हैं पता है ना? The vertical data of the table is called a Yes. column. Vertical data जो है जैसे roll number, name, class and section. These vertical data is called column. और जो horizontal है, एक लाइन, पूरी एक लाइन, एक पर्सन की पूरी Rows. एक पर्सन की पूरी इंफॉर्मेशन, रोल नंबर 1 के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, 1 अक्षर, 9th and 8th. So this one information of the person is called a row. Horizontal data of the table is called a row and vertical data of the table is called column. And the individual box
which is the intersection of rows and columns, is called a cell. So in this table there are how many cells? 20 cells are there. So rows, columns and cells. This definition you remember. And one more, these two ways we have discussed to insert the table. One more way you can insert a table, insert table, and there is a draw table option. ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे तो एक पेंसिल दिखाई देगी, इससे आप अपनी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये बॉक्स मैंने ड्रॉ किया, डोंट राइट एनीथिंग हृदयांश। अब मैं वर्टिकली लाइन की ड्रैग करूंगी तो वो हम मेरे कॉलम बन जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगी तो रो बन जाएगी। So this way I can draw my table also. So there are three ways to insert a table. Either you go in the insert and you can select the boxes from the table, or you can click on insert table option, or you can draw your table. अब इस टेबल में देखिए कि रोल नंबर 1 2 3 4 लिखे, उसके बाद का ये सारा एरिया जो है सेल का ये वेस्ट हो रहा है। अगर आपको ये वेस्ट नहीं करना है तो आप लेआउट टैब पे जाए। इन द लेआउट टैब, this is ribbon, in the cell size ribbon there is a auto fit icon. ऑटो फिट पे क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन आएगा ऑटो फिट कंटेंट। इस पे क्लिक करेंगे तो टेबल में जितना टेक्स्ट लिखा है उसके हिसाब से वो टेबल का एरिया कवर करेगा। इट विल नो एनीथिंग इज वेस्टेड। रोल नंबर, नेम, क्लास और सेक्शन जो हेडिंग है उसमें जितना टेक्स्ट का एरिया उतना ही टेबल का कॉलम का साइज हो जाएगा। तो इफ यू वांट टू don't want to waste the area of the document, you can use this auto fit। फर्स्ट ऑप्शन ऑटो फिट कंटेंट। ऑटो फिट विंडो पे क्लिक करेंगे तो जितना डॉक्यूमेंट एरिया है उतने एरिया पर टेबल एक्सपांड हो जाएगी जैसे पहला था। और थर्ड है फिक्स्ड कॉलम्स विड्थ। इसका क्या मतलब है, जैसे ये कोई भी कॉलम में हम टेक्स्ट लिखते जाए तो ये जितना टेक्स्ट लिखोगे उतना वो कॉलम का साइज जो है अपने आप बड़ा हो जाएगा। We don't want this. We don't want that column size should be always fixed. So if we click on the fixed column width, तो अब हमने कितना भी लिखेंगे तो कॉलम का साइज नहीं बढ़ेगा, वो नेक्स्ट लाइन में रैप हो जाएगा टेक्स्ट। So they in the AutoFit these three options are important: AutoFit content, AutoFit window, and fixed column width. अब कई बार हम टेबल इंसर्ट करते हैं तो कई रोज हम बीच में मिस कर जाते हैं। जैसे मैंने रोल नंबर 3 अमित 9C लिखा, अब उससे पहले मुझे एक और स्टूडेंट का नाम लिखना था अमित से पहले, which I forgot to write. So you can insert a row afterwards also. Click on the layout tab. There is a insert a row and column group is there in the layout tab ribbon. अब मुझे अमित से पहले एक लाइन और इंसर्ट करने तो योर कर्सर शुड बी ब्लिंक इन दिस रो, अमित रो, देन यू क्लिक ऑन द इंसर्ट अबव ऑप्शन, तो उससे पहले एक न्यू रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर इसके बाद एक रो करना था तो इंसर्ट बिलो। तो इंसर्ट अबव एंड इंसर्ट बिलो इज टू ऑप्शंस यू कैन यूज टू इंसर्ट अ रो अबव योर सेल। जो भी करंट सेल पे सेल अपना कर्सर ब्लिंक कर रहा है उसके ऊपर हो जाएगा इंसर्ट अबव करेंगे तो, और इंसर्ट बिलो करेंगे तो नीचे सेल नीचे न्यू रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर न्यू कॉलम इंसर्ट करना है, जैसे क्लास के बाद मुझे एक न्यू कॉलम इंसर्ट करना है तो इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट राइट करेंगे तो राइट साइड में कॉलम न्यू कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे ही इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड में न्यू कॉलम इंसर्ट। You can use these options to insert a row, and for inserting row you can use insert above and insert below. To insert a column you can use insert left and insert right option. डिलीट करना है, जैसे ये पर्टिकुलर इस रो में मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मैं डिलीट पे जाऊंगी, डिलीट
रो ऑप्शन इज देयर, तो पूरा की पूरी रो डिलीट हो जाएगी। अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड होता है, पता है ना। ये पर्टिकुलर कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम पे क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही पूरा टेबल डिलीट करना, डिलीट टेबल पे क्लिक करें, टेबल विल बी डिलीटेड। So you can delete row, column, table and cell also. सेल के अंदर का डेटा जो है उसका अलाइनमेंट कर सकते हैं, जैसे कि पैराग्राफ वी हैव लर्न अबाउट द 4 अलाइनमेंट, राइट, लेफ्ट, सेंटर एंड जस्टिफाई। यहाँ पे कुछ ही 9 टाइप्स के अलाइनमेंट होते हैं, जिसमें कि अभी ये लेफ्ट साइड में है, टेक्स्ट आर इन द लेफ्ट साइड। अब मैं इसको सेंटर भी कर सकती हूँ, राइट भी कर सकती हूँ। हरदियांश माथुर वांट टू से एनीथिंग? अलाइन सेंटर, सेंटर, ये 9 टाइप के अलाइनमेंट आप देखिए। इसमें टेबल में अलाइनमेंट टॉप और बॉटम का भी होगा, जैसे ये सेल है इसे साइज में बढ़ा देती हूँ ड्रैग करके। अब इसमें जो भी अलाइनमेंट पे आप माउस ले जाएंगे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा नीचे। ये सेंटर में एकदम वर्टिकली भी सेंटर में है, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में है। ये बॉटम में ले जाएगा, लास्ट रो बॉटम में ले जाएगा टेक्स्ट को, बीच वाला सेंटर में और ऊपर वाला टॉप पर ले जाएगा। तो देर आर हॉरिजॉन्टली राइट, लेफ्ट एंड सेंटर अलाइनमेंट इज देयर in the table, and vertically also top, bottom and center alignments are there. So in the table there are 9 types of alignments, so you can use from alignment tab here. Okay. So these are the main options you can use for टेबल पर्पज। हाँ, टेबल में आप जैसे मुझे इसका बाउंड्री बनानी है टेबल की, जैसे नीचे वाली टेबल लेते हैं, इस टेबल को मैंने बॉर्डर डालना है। बॉर्डर मीन्स द आउटलाइन ऑफ द टेबल। जैसे ये भी आउटलाइन जो है थिन लाइन दिखाई दे रही है, मुझे थोड़ा थिक करना है। सो आई कैन यूज इन द डिजाइन टैब, there is a border option in the table style group. If you click on the border option, there is some menus will be displayed. At the last, you can go in the border and shading option. A border and shading dialog box will be appear. In this dialog box, you can choose which kind of border style you want. Dotted line border, अलग अलग टाइप के बॉर्डर स्टाइल है, वॉट एवर यू वांट यू कैन सेलेक्ट। थिकनेस बढ़ानी है इसकी, ये हाफ पॉइंट्स का बॉर्डर है, आई कैन इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द बॉर्डर। द कलर ऑफ द बॉर्डर ऑल्सो आई कैन सेलेक्ट, देन प्रेस ओके। देखिए रेड बॉर्डर में टेबल बन गई। ऐसे ही शेडिंग मीन्स ऊपर बॉर्डर में ना जाके शेडिंग पे जाएं, एंड देर आर सो मेनी कलर्स। आप कलर पर्टिकुलर सेल पे अप्लाई कर सकते हैं, जिस सेल में कर्सर है उस सेल में कलर हो जाएगा, या पूरा टेबल को सेलेक्ट करके आप शेडिंग डाल सकते हैं, या अलग अलग सेल में अलग अलग टाइप का कलर इंसर्ट करना है। यू कैन go to the particular cell and then insert the color. So border and shading option is used to insert the thickness and border of the table and the inside color of the table. अब अगर प्रिंट लेना है, दिस डॉक्यूमेंट आई वांट टू टेक प्रिंट आउट, तो प्रिंट ऑप्शन देने से पहले यू वांट टू नो दैट व्हाट प्रिंट, तो प्रिंट आउट लेंगे तो कैसा दिखेगा। उसके लिए फाइल टैब पे क्लिक करें एंड प्रिंट ऑप्शन पे जाएं। व्हेन यू गो टू द प्रिंट ऑप्शन,
there are three option will be displayed. You click on the print preview option. प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन में आपको दिखाई देगा कि प्रिंट लेने के बाद आपका पेज ऐसा आएगा। तो पहले आप देख लें पेज कैसा आएगा, आप सेटिस्फाइड हैं कि ये सही प्रिंट आउट आएगा तो आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर दें, नहीं है तो आप चेंजेस करें और फिर वापस प्रिंट लेआउट दें। When I click on the print option, this print dialog box will be coming. इस डायलॉग बॉक्स में आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको सारे पेजेस, जैसे इन माय डॉक्यूमेंट इफ देयर आर 15 pages are there, so I want to take all 15 pages of the printout, then I will click on the in the page range I will click on the all option. अगर मुझे जिस पेज पर मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है उसी पेज का प्रिंट आउट चाहिए तो मैं करंट पेज पे क्लिक करूंगी, और मुझे 1 से लेके 5 पेज ही चाहिए प्रिंट आउट, तो इन द पेजेस आई विल सेलेक्ट 1-5, तो 1 से लेके 5 के बीच के पेज का प्रिंट आएगा। और अगर आपको दो पेज नंबर 2 चाहिए, फिर कॉमा करके पेज नंबर 8 चाहिए, फिर कॉमा करके पेज नंबर 10 चाहिए, तो ये these 3 pages will be coming, so you can select the range of the pages, which page printout you want. नंबर ऑफ कॉपीज में आप एक ही प्रिंट आउट चाहिए एक पेज का, या एक हर पेज के 2 प्रिंट आउट चाहिए, तो यू कैन सेलेक्ट द नंबर ऑफ कॉपीज हियर, 2 3 4, हाउ मेनी पेजेस यू वांट। प्रॉपर्टीज में जाएं, टेबल प्रॉपर्टीज में जो डिफॉल्ट पेपर साइज होता है वो होता है A4, आपने सुना होगा, आपका एग्जाम भी आपको देने के लिए A4 पेपर बोला है, तो A4 पेपर इज द डिफॉल्ट पेपर साइज, द पेपर वी आर इंसर्टेड इन द प्रिंटर इज कॉल्ड A4 पेपर। तो अगर आपको बड़ा पेपर चाहिए तो आप दूसरे पेपर भी यूज में ले सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट में लीगल पेपर थोड़ा बड़ा होता है, वॉट एवर पेपर यू वॉन्ट यू कैन यूज इट, बाई डिफॉल्ट इज A4 पेपर। Orientation important है, portrait and landscape, there are two types of page orientations are there, कि आपको पेपर वर्टिकल पेपर चाहिए, मतलब कि विड्थ कम है और हाइट ज्यादा है पेपर का, या पेपर को रोटेट करके लैंडस्केप में प्रिंट निकालना है। लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो पेपर जो है वो रोटेट हो जाएगा। जैसे हम ओरिएंटेशन पे जाएं एंड लैंडस्केप कर दें तो पेपर का प्रिंट आउट ऐसा निकलेगा। तो जैसे कई बार यू वांट टू paste the paper in your class board, behind the class there is a board, there you want to paste any paper related to competition, so we can take print out in the landscape also. So there are mainly two types of orientation, landscape and portrait. Generally portrait ही होता है, landscape में height कम और width ज्यादा हो जाती है पेपर की। So we will close the print layout. So these are all about the print options. इसके अलावा आप ये जानते पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं, देयर इज इंसर्ट बटन, insert button, there is a picture option in illustration group. If you click on the picture option, पिक्चर ऑप्शन में आपकी कंप्यूटर के अंदर जो भी पिक्चर्स हैं सेव, उन पिक्चर्स को आप सर्च करें कि आपने पिक्चर कहाँ सेव की है, तो कोई भी टाइप की पिक्चर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको पिक्चर कंप्यूटर में सेव नहीं क्लिप पार्ट में से चाहिए तो इंसर्ट क्लिप पार्ट पे क्लिक करें, इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाकर इफ यू क्लिक ऑन द क्लिप पार्ट, at the right side clip art dialog box will be there. In the search for box you can write which kind of picture you want. जैसे मुझे फ्लावर, कोई फ्लावर इंसर्ट करना है तो फ्लावर लिख दूंगी और गो पे क्लिक करूंगी। तो in the computer MS Word, if there is a flower pictures are there, so all the pictures will be displayed. You click on any one, then it will be inserted in your document. You can insert ready-made picture of the
MS Word through clip art option, and you can insert picture from your computer also by insert and picture option. यहाँ पिक्चर इंसर्ट होती फॉर्मेट टैब नया डिस्प्ले हो जाएगा जिसमें आप पिक्चर की बाउंड्री डाल सकते हैं, थिन बाउंड्री, राउंड शेप में पिक्चर कर सकते हैं, शेडेड में कर सकते हैं, व्हाट स्टाइल यू वांट, देयर आर सो मेनी स्टाइल, टिल्ट करना है पिक्चर को, शेडेड का दिखाना है, वॉट एवर काइंड ऑफ बाउंड्रीज यू वांट यू कैन इंसर्ट दिस। पिक्चर के अलावा हम इंसर्ट भी जाके कुछ शेप्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी रेडीमेड शेप्स आर अवेलेबल। जैसे स्माइली इंसर्ट करना है, शेप Ma'am, सेलेक्ट किया will you upload this on YouTube? है, Ma'am, will you upload this on YouTube? क्लियर आवाज नहीं आ रही, वापस बोलना। Ma'am, will you upload this on YouTube? यस यस, दिस क्लास, टुडेज क्लास वीडियो आई विल अपलोड ऑन द यूट्यूब। मैम यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? तो मैम लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दोगे क्या मैम इसका लिंक? लिंक स्टूडेंट पोर्टल पे आई विल सेंड द लिंक। स्टूडेंट पोर्टल पे आप देखते हैं ना, in the student portal I will send the link so you can see today's video. Okay, ma'am. Okay. So Okay, ma'am. these kind of shapes you can insert. Shape के अंदर भी color fill करना है, जैसे smiley में generally yellow color, smiley में कोई भी shape है उसमें आप color shape insert करने के बाद color भी insert कर सकते हैं उसके अंदर। कई बार हम कोई फ्लो चार्ट वगैरह बना, जैसे साइंस में आपको कभी चाहिए होता होगा फ्लो चार्ट, जैसे हायरार्की दिखानी है, इन द इंसर्ट टैब देयर इज अ स्मार्ट आर्ट आल्सो। स्मार्ट आर्ट में जैसे ये इस तरह की है, हायरार्की दिखानी है, बॉक्सेस के फॉर्म में कोई डायग्राम बनाना है, तो एनी काइंड ऑफ डायग्राम यू कैन सेलेक्ट द फॉर्मेट एंड यू कैन इंसर्ट दिस स्मार्ट आर्ट। तो आपको कोई भी फ्लो चार्ट बनाना है, कोई भी साइंस में, मैथ्स में, कंप्यूटर में कोई भी तरह की डायग्राम में आपको शो करना है कि देयर आर थ्री थ्री वेज टू शो, जैसे टेबल इंसर्ट करने के थ्री वेज है, तो यहाँ 1 2 एंड 3 वेज आप यहाँ पे डायग्रामेटिक वे में शो कर सकते हो। इसको डायग्राम के लेआउट चेंज करना, यू कैन चेंज द लेआउट। So there are so many smart art by which you can create your own diagram in your own way. जैसे ये एरो के रूप में दिखाना है कि पहले ये होता था, then ये, so you can show the diagram in the any kind of format you can choose from here. So this is smart art, insert shapes, clip art, pictures, anything you can insert. चार्ट आपको पता है, जैसे एक्सेल में आप टेबल बनाते हैं, ऐसे यहाँ पर भी टेबल बना के उस टेबल का चार्ट शो कर सकते हैं। जैसे आपकी क्लास में जनरली स्टूडेंट कितने मार्क्स आते हैं, तो यू कैन मेक अ टेबल ऑफ द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास एंड देयर टोटल marks, and according to that you can create a chart of also. So for the chart option you must have a table. Select the table and go to the chart. There are so many types of chart: pie chart, bar chart, line chart, whatever chart you want, that chart will be inserted. आप एक्सेल शीट से भी चार्ट ले सकते हैं। So these all options of the insert tab. um, 2 3 options remaining. एक पेज बॉर्डर भी है, जैसे अभी अब हमने टेबल में बॉर्डर डाला था, वैसे आप पूरे पेज पर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए होम टैब पर in the paragraph group there is a border option is there, at the last border and shading is there, तो आप
There are three tabs in this dialog box: borders, page border and shading. You click on the page border. पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो सेम वे में आप कलर सेलेक्ट करेंगे, स्टाइल सेलेक्ट करेंगे, थिकनेस सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने ब्लू कलर ले लिया, ओके करेंगे तो ये बॉर्डर पूरे के पूरे पेज पर अप्लाई हो गया। अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखें तो पूरे पेज पर बॉर्डर दिखाई देगा। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट कर देते हैं। If you want to apply a page border, you can also apply from the home tab, paragraph row. पेज बॉर्डर में एक आर्ट की स्टाइल भी होती है, जैसे कोई डिजाइन अप्लाई करना है पूरे पेज पे तो आर्ट में जाके जो डिजाइन यूजल होगी वो पेज पे देखिए पूरे पेज पर इस तरह के स्टाइल वाला बॉर्डर आ गया। So today we stop for class because we don't have time. So I will upload the video. You can see if anything missed out today. Okay. So bye for today. Okay, ma'am. Okay, bye. Thank you, ma'am. Good day, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, good day. Bye, ma'am. Bye. Bye. Thank you, ma'am. ma'am. Welcome.